کافی دنوں سے جنگل میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ سارے پرندے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور بارش کے رکنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایسے ہی چڑیا کا بیٹا چوچو اپنی ماما کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ مما، برسات کب رکے گی؟ چوچو، ڈرو مت بیٹا، آج کل کی برسات کافی دن تک ہی چلتی ہیں اور جیسے ہی بارش کا موسم ختم ہو جائے گا اور بارش رک جائے گی تو پھر شروع ہوگی سردی کا موسم۔ مما، ٹھنڈ کیا ہوتی ہے؟ چڑیا اپنے بیٹے چوچو کی باتیں سن کر ہنسنے لگتی ہے۔ کیونکہ یہ تمہارا پہلا ٹھنڈ کا موسم ہوگا۔ پچھلی بار سردی کا موسم تھا تو آپ اپنے انڈے میں تھے۔ مما، یہ ٹھنڈ کیسی ہوتی ہے؟ کیا سردی کا موسم بھی گرمیوں کے موسم کی طرح ہوگا؟ چوچو ایسے ہی اپنی ماما سے معصومانہ سوال کر رہا تھا۔ بس تھوڑا انتظار کرو، سردی کا موسم آنے ہی والا ہے۔ جب سردی کا موسم آئے گا بیٹا تو آپ دیکھ لینا سردی کا موسم کیسا ہوتا ہے۔ مما، کیا میں آپ سے ایک اور بات پوچھ لوں؟ ہاں چوچو بیٹا، پوچھو۔ مما، کیا میرے پاپا پچھلی سردیوں کے موسم میں اس دنیا میں تھے؟ ماما چڑیا اپنے بیٹے چوچو کی یہ باتیں سن کر رونے لگ جاتی ہے۔ نہیں بیٹا، آپ کے پاپا تو پچھلی سردیوں میں ہمیں چھوڑ کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ مما، یہ سب کچھ کیسے ہوا تھا بتائیں۔ مما، میں یہ سب کچھ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے پاپا کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ تب کی بات ہے بیٹا جب آپ بہت زیادہ چھوٹے تھے۔ پچھلی بار سردیوں کے موسم میں ہمارے یہاں برف باری ہوئی تھی۔ ہمارے گھر میں جو کچھ کھانے کا تھا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن آپ کے پاپا نے مجھ سے کہا، کی مما، میں آج پورا سارا جنگل گھوم کے آیا ہوں، لیکن ہمارے جنگل میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا۔ برف باری کی وجہ سے پورے جنگل میں سارے درختوں پر برف پڑی ہوئی ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں لا سکا۔ جنگل میں ہر طرف برف ہی برف ہے، کھانا ملے تو کہاں سے ملے؟ آج میں جنگل سے باہر جاؤں گا، سنا ہے انسانوں کی بستی میں کھانا مل جاتا ہے۔ آج مجھے بلبل ملی تھی، اس نے مجھے بتایا تھا کہ انسانوں کی بستی میں بہت ساری فصلیں ہیں اور وہاں سے ہمیں بہت سارا کھانا بھی مل جائے گا۔ نہ بابا نہ، ہم نہیں جائیں گے انسانوں کی بستی میں۔ اجی، میں نے سنا ہے کہ انسانوں کی بستی میں بہت بڑی بندوق ہوتی ہے، وہ تو دور سے ہی پرندوں کو گولی مار دیتے ہیں۔ ایسے پنکھ پہ پنکھ رکھ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہونے والا، مجھے جانا ہوگا۔ میری بھلا کیا انسانوں سے دشمنی ہے؟ اگر میں نہیں گیا تو ہم تو سب بھوکے ہی مر جائیں گے۔ میں نے آپ کے پاپا کی بات مان لی، تب آپ سوئے ہوئے تھے۔ پھر میں اور آپ کے پاپا انسانوں کی بستی میں کھانے کی تلاش کرنے نکل پڑے۔ وہاں تو سچ میں برف نہ تھی، وہاں تو ساری فصلیں ہی تھیں اور اناج ہی اناج تھا۔ اسے دیکھ کر ہم دونوں خوش ہو گئے۔ پھر میں اور آپ کے پاپا ایک درخت پر بیٹھ گئے تھے، سامنے مکئی کی فصلیں تھیں۔ اور تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ تو انسانوں کی بستی ہے، انسان بہت زیادہ ظالم ہوتے ہیں۔ آپ نے دانا لے لیا ہے؟ کیا وہ کوئی انسان تو نہیں ہے مکئی کی فصل کے پاس؟ نہیں، جب میں فصل میں گیا تھا تو وہاں پر تو کوئی نہیں تھا، لیکن آپ دونوں ایک ساتھ فصل میں نہ جانا۔ اور پھر ہم نے ایسا ہی کیا، میں فصل کے باہر بیٹھ کر ایک درخت پر بیٹھ گئی تھی اور آپ کے پاپا مکئی کے فصل میں چلے گئے تھے۔ تبھی آپ کے پاپا کو گئے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی، تبھی اچانک ایک
जोर की तेज आवाज आती है जिसे सुनकर सारे परिंदे भागने लग जाते हैं और फिर मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज कौन सी थी। मम्मा, क्या आपने वो आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी? नहीं मेरे प्यारे बेटे, वो तो आवाज बंदूक चलने की थी। किसी जालिम इंसान ने बंदूक चलाई थी। जब आपके पापा काफी देर तक ना लौटे तो फिर मैं उन्हें देखने मकई की फसल में चली गई। हाँ, आपके पापा खून में लथपथ लगे हुए थे। कुकू की मम्मा, आप भाग जाए यहाँ से, आप यहाँ ना बैठे, वरना ये जालिम इंसान आपको भी मार देंगे। फिर मैं वहाँ से जल्दी से वापस आ गई। मम्मा, मम्मा, पापा वहीं मर गए थे क्या? हाँ मेरे बेटे, आपके तो पापा वहीं पर ही मर गए थे। फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है ऐसी बारिश में? मैं हूँ कबूतर। क्या आपके पास थोड़ी शक्कर है? अंदर आ जाए कबूतर भैया, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं थोड़ी शक्कर लेने आया था। मैं और मिट्ठू तोता मिलकर हलवा बना रहे हैं और जब देखा तो हलवा बनाने के लिए तो शक्कर ही नहीं थी। हाँ कबूतर भैया, मेरे पास शक्कर है, आप ले जाएं। आप हमारे साथ चलें, हम सब मिलकर हलवा खाएंगे। नहीं कबूतर भैया, आप रहने दे, हलवा बहुत थोड़ा होगा, आप लोग ही खाए, हम माँ बेटा तो दाना ही खा लेंगे, हमारे पास बहुत दाना है। नहीं चिड़िया बहन, मिल बांट कर खाने में तो ज्यादा मजा आता है। हलवा थोड़ा भी हुआ तो मिल बांट कर खा लेंगे। फिर मामा चिड़िया और उसका बेटा चूचू कबूतर के घर चले जाते हैं। चिड़िया बहुत अच्छा किया कि आप आ गए, अब बहुत मजा आएगा। अब हम सब मिल बांट कर हलवा खाएंगे। फिर वो सब हंसी खुशी हलवा खाते हैं और हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी और चिड़िया के तीनों बच्चे बहुत डरे हुए हैं और उनकी माँ खाने की तलाश में घर से बाहर गई हुई है। बच्चों ने पहली बार बारिश देखी थी और उन्हें पता नहीं है कि बारिश के वक्त में क्या करना चाहिए। भैया अंदर आ जाइए, बाहर खतरा हो सकता है। माँ ने हमें कहा है कि घोंसले के अंदर ही रहना, बाहर मत जाना। अरे मैं बाहर जाके देख रहा था कि ये आवाज़ कैसी है। मैंने देखा कि आसमान से बहुत ज़्यादा पानी नीचे गिर रहा है। कुछ भी हो भैया, लेकिन जब तक माँ नहीं आ जाती आप घर से बाहर मत जाना। नीलू बाकी भाइयों से सबसे बड़ा था, उस पर अपने छोटे भाइयों की देखभाल की जिम्मेदारी थी। अपनी माँ का इंतज़ार करने के सिवा बच्चे और कुछ कर भी नहीं सकते थे। इधर लाडो चिड़िया बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उससे भी अपने बच्चों की बहुत टेंशन हो रही थी। मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? बारिश भी काफ़ी वक्त से चल रही है, मुझे जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास जाना होगा, वो बहुत डरे हुए होंगे। इधर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कालू कौवा तेज़ बारिश में जा रहा था। लाडो चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई दिखाई देती है, वो उसके पास चला जाता है। और लाडो, तुम अभी तक घर नहीं गई? इसका मतलब तुम्हारे बच्चे घर पे अकेले होंगे। हाँ कालू भैया, मुझे तो अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। लाडो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर तुम्हें ये बात बताना बहुत ज़रूरी है। सुना है एक खतरनाक चीलों का झुंड हमारे जंगल में घुस आया है। हाँ कालू भैया, मुझे ये बात पता है। जब मैं बुलबुल के घर गई थी तब मैंने वहाँ देखा कि एक चील बुलबुल के बच्चे को खा रहा था। बुलबुल घर पर नहीं थी,
पर एक बच्चा फिर भी जिंदा था। मैंने उस बच्चे को बचाने की ठान ली थी। तब मैं उस चील के पास चली गई। अरे ओ चील, छोड़ दो उस बच्चे को, वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। चील को गुस्सा आ गया और वो मुझसे कहने लगा, अरे ओ चिड़िया, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा, चल भाग यहाँ से। और मेरा पेट भरा हुआ ना होता तो तुम दोनों को भी खा जाता मैं। पर देख लेना, आगे तुम मुझे कहीं दिखाई दी तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। ऐसा कहकर फिर चील वहाँ से उड़ गया। कालू भैया, तभी वहाँ पर बुलबुल चिड़िया आ गई थी। उसने देखा तो वो बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि चील ने उसके दोनों बच्चों को खा लिया था। अरे ये क्या हो गया, मेरा तो सब कुछ लुट गया। ये सब किसने किया, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। अरे बहन, तुम्हारे बच्चों को चील ने खाया है। अगर मैं ऐन वक्त पर ना आती तो वो तुम्हारे तीसरे बच्चे को भी खा जाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। लाडो चिड़िया, पर मैं अब उस चील को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे जान से मार दूंगी। वो मेरे आखिरी बच्चे को कभी भी खाने आ सकता है। अरे बहन, जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना, वो सिर्फ तुम्हारा नहीं, जंगल के और परिंदों का भी शिकार कर रहा है। उसे हमें जासे में फंसाना होगा, फिर हम उसे अपने किए की सज़ा देंगे। बिना सोचे हुए जल्दबाजी में कोई भी फैसले लेना गलत बात है। ठीक है बहन, मैं कोई भी गलत कदम नहीं उठाऊंगी। अच्छा, तो ये सब हुआ था। बुलबुल के साथ बहुत बुरा हुआ। हम उस चील को क्या, बाकी चीलों को भी नहीं छोड़ेंगे। लाडो चिड़िया अपना खुद का ना सोचते हुए अपने बच्चों के पास तेजी से चले जाती है। बारिश की वजह से उसे उड़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। उसके पूरे पंख भीग चुके थे, फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसे तो अपने बच्चों के पास जाना था। वो देखो, अपना शिकार आ रहा है। इस तेज बारिश में इसको खाने का मज़ा बहुत आएगा। अरे दोस्तों, मेरे पास तो मिर्च मसाला भी है, उस चिड़िया को खाकर हमारा पेट भर जाएगा। लाडो चिड़िया शिकारी परिंदों के पास आ जाती है। अरे ओ चिड़िया, रुक जाओ, इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रही हो? लाडो चिड़िया शिकारी परिंदों को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। लाडो चिड़िया बहुत होशियार और समझदार थी। उसने चीलों के सामने खड़े होने का फैसला कर लिया। जी, मैं अपने घर जा रही हूँ। ऐसे कैसे जाओगी? अब तुम हमारे इलाके में आ गई हो। अब तुम अपने घर जाने के बजाय सीधा हमारे पेट में जाने वाली हो। उनकी ये बात सुनकर लाडो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी लाडो के दिल में एक आइडिया आता है। मुझे कैसे भी करके इनसे छुटकारा पाना होगा। अरे भाइयों, आप मुझे कैसे खा सकते हो? मुझे पहले से किसी ने खाने के लिए रिजर्वेशन करके रखा है। क्या? ऐसे कैसे? हमारे होते हुए तुम्हें खाने की किसी और की जरूरत कैसे हुई? वो दूसरे तीसरे कोई नहीं, मेरे खुद के शौहर हैं, जो कि एक चील है। मैंने जिंदगी भर उनकी खिदमत की और उनको 3 प्यारे प्यारे बच्चे दिए, फिर भी वो मुझे खाना चाहता है। क्या कोई अपनी खुद की बीवी को खा सकता है बोला? जंगल में बहुत सारे परिंदे हैं, कौन अपनी बीवी को खाना चाहेगा? हाँ भैया, कोई नहीं चाहेगा, पर मेरा शौहर चाहता है। यही नहीं, उसने मेरे 3 बच्चों को भी खा दिया है, और अगर तुमने मुझे खा लिया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुझे खाने का हक सिर्फ उन्हीं का है। किसकी इतनी हिम्मत है जो हमसे टकराए? अगर है हिम्मत तो चलो मेरे हस्बैंड के पास, एक बार लड़ कर भी देख लो। अगर तुम जीत जाओगे तो मुझे खा लेना। बताओ, है मंजूर? हाँ, चलो हम देख लेंगे उससे। लाडो चिड़िया निकल पड़ी उस चील की तलाश में जिसने बुलबुल के बच्चों को खाया था।
लाडो चिड़िया आगे आगे उड़ रही थी और उसके पीछे पीछे चील भी आ रही थी। लाडो चिड़िया आखिरकार उस चील के इलाके में पहुंच गई। और ये चिड़िया मेरे इलाके में उस दिन तो बच गई थी, आज तो नहीं बचेगी मेरे हाथों से। मुझे बहुत भूख लगी है, आज मैं इसका शिकार करके खा जाऊंगा। तुम यहाँ पर ही रुको, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो मैं अकेले अकेले आगे जाती हूँ। जब वो मुझ पर हमला करने लगे तो तुम जल्द से आ जाना। लाडो चिड़िया उन्हें वहां पर छोड़कर जल्दी से वहां पर आ जाती है। और वाह, आज शिकार खुद ही चलकर मेरे पास आ गया है। लगता है आज मैं पेट भर के खाना खाऊंगा। कल भी तुमने मेरे छोटे छोटे बच्चों को खा लिया था, आज मुझे खा लो। वैसे भी मैं जिंदा रह के क्या करूंगी, मेरा तो सब कुछ लुट गया है। अरे वो बच्चे तेरे नहीं, उन पर मेरा सिर्फ हक था। शिकारी चील उनकी सारी बातें सुन रहा था। लाडो की बातों पर उससे यकीन होने लगा था। इधर चील को लाडो की बात समझ में नहीं आ रही थी, फिर भी उसने ये मौका अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहा। हाँ, जैसे मैंने बच्चों को खा लिया था वैसे तुम्हें खा जाऊंगा। चील उड़कर लाडो पर हमला करने ही वाला था, तभी दूसरे शिकारी परिंदों ने उसका रास्ता रोक लिया। और बेटे, तने तो मौज कर दी, जरा रुक तो, वो हमारा शिकार है। अरे तुम सब कौन हो, उस पे सिर्फ मेरा हक है। देखो देखो भाइयों, ये मेरे साथ कैसा सलूक करते हैं। अरे बेटे जरा रुक जा। ऐसा कहते ही उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। उन दोनों की लड़ाई देखकर उल्लू वहां से भाग गए। दोनों में इतनी तेज लड़ाई हो गई कि दोनों घायल हो गए और दोनों वो जमीन पर गिर गए। क्यों, कैसी रही? मैंने तुम दोनों को उल्लू बनाया था, ना ही मैं इसकी बीवी हूँ और ना ही इसने मेरे बच्चों को खाया है। मैंने जानबूझ के तुम दोनों में झगड़ा करवाया था ताकि सारे परिंदे महफूज हो जाएं। ताकत से हमेशा अक्लमंदी अच्छी होती है। चलो इनका काम तो तमाम हो गया। अरे बाप रे, इनके चक्कर में मैं अपने बच्चों को ही भूल गई। उन दोनों चील में इतनी लड़ाई हो गई कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। लाडो चिड़िया तेज उड़ते हुए अपने घोंसले की तरफ निकल पड़ी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको टाइम पर मिलती रहे। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।